गुड आफ्टरनून। कैसे हो सर? ठीक है सर। So today we are starting from 12th portion, that is the reproduction in organism. Before starting, I want to learn something from you, that what you have done in last couple of days. हेलो, आवाज आ रही है क्या? आ रहा है सर, आ रहा है। आप बोलो, इन कुछ टाइम में आप लोगों ने क्या क्या किया है? नहीं बोलोगे क्या आप लोग? तो हमारा एग्जाम था। एक मिनट होल्ड ऑन। हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ, बेसिकली reproduction in organism. In this chapter, we will study that how a organism continues a species. Since to live in the universe, to exist in the universe, each and every organism needs certain kind of process to continue their generation. For example, we can say human beings have dominated the whole world, whole the universe, because of a property that is found in living organism, and that is reproduction. As you have read in diversity of in living world, the chapter the living organism, in which you have read three criteria for defining living organism. Yes or no? What are those criteria? Anyone? आप लोग क्लास में हो क्या? The question. I am asking that in the chapter the living world in the diversity unit, you have read that how you can differentiate between living and non-living. What are the criteria that you will use to determine that an organism is a living or either non-living? How can you define it? What are those? हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? सर रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। किसने कहा ये? हेलो सर। बेटा आप लोग अगर ऐसे ऐसे जवाब दोगे तो फिर कैसे कैसे आप लोगों का नंबर आएंगे? चलो कोई नहीं, अगर आप भूल गए मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ. वी हैव थ्री क्राइटेरिया that will differentiate the living from non-living. The first criteria is metabolism. सर वही बोला ना। हाँ, तो जो दूसरा बोला वो गलत बोला ना बेटा. The second point, the second criteria is cellular organization. Yes or no? यस सर।
not reproduction. The third one is, बताओ, ये 3 पॉइंट है। हाँ बेटा, Sir, reproduction. no, sorry, reproduction is not the defining criteria, but they are found in living organisms. अच्छा, एक मैं टर्म बोल रहा हूँ, defining properties. If someone asks you that what is defining properties, how will you explain it? कोई मुझे इसका देगा डेफिनेशन? Defining properties are those properties which are only found in only in living organisms. Living organisms. And applied to each and every living organism which is present in the universe. Is it clear? All those organisms in which these features are present, these properties are present, and having no any exception, those properties are known as defining properties. For example, we have metabolism. Metabolism, if there is a cell, there will be metabolism. If there obviously cell है तो cell का organization होगा. And consciousness means getting response from their environment to get be safe or to get what we can say from any harmness. ये 3 क्राइटेरिया अपने पास है जो हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करते हैं. इतना क्लियर है क्या? आप पूछोगे Yes, sir. ग्रोथ भी है तो तनुश्री इसलिए आपकी बात गलत था, ठीक है ना? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये 2 और पॉइंट है. सर पूछोगे सर ये दोनों कैसे नहीं है? लिविंग में तो होते हैं. दे आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई दे आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट डिफाइनिंग फीचर्स. समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि देयर आर सर्टेन सेल्स which do not grow. For example, heart cell. Is it clear? And there are certain organisms which do not reproduce, like mules, hinny, and what we can say, human infertile couple. These are also living organisms. Is they are non-living? Is human infertile couple is non-living? No, sir. Living. No. It means these criteria is not present in these certain kind of organisms. That's why we do not take this point for the defining properties. Clear है क्या? हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी, लेकिन ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? कि इसका एक्सेप्शन हो रहा है, ठीक है ना? क्योंकि हर जगह ग्रोथ नहीं होती है, हर जगह रिप्रोडक्शन नहीं होती. फॉर एग्जांपल, सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है. क्या माउंटेन्स लिविंग है, नॉन लिविंग है? Non-living. हाँ, इट मींस इसका एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ का तो एक्सेप्शन है. कहीं पर किसी नॉन लिविंग, कहीं पर नॉन लिविंग पे हो रहा है, कहीं पर लिविंग में भी नहीं हो रहा है. इसलिए हम लोगों ने इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में नहीं लिया. तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के लिए अपने पास 3 पॉइंट है. सर मैं साथ साथ बोलो क्या क्या है वो? Metabolism, Metabolism. cellular organism, organization and consciousness. हाँ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शसनेस, ये 3 पॉइंट है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जो भी पूरे यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करता है, किसी भी अप्लाई करो, किसी भी लिविंग पे आपको ये तीनों पॉइंट अप्लाई होंगे. अगर सेल है तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, इट मींस सेल. इट मींस आपने पढ़ा होगा द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. इसका मतलब ये होता है ना कि इट हैज सर्टेन प्रॉपर स्ट्रक्चर. लेस देन दिस नथिंग, लेस देन दिस नॉट अ सिंगल सेल इज एग्जिस्टिंग. क्योंकि आधा सेल एग्जिस्ट करता नहीं है. वन कंप्लीट सेल, दैट्स व्हाई इट इज फंडामेंटल, एंड since it has structure, that's why it is structural unit, and doing or performing certain kind of function, that's why structural or fundamental and functional unit of life. क्लियर है क्या? जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर ये सारे फीचर्स पाया जाएगा कि उसके पास सेल होगा तो उसके पास जो साइटोप्लाज्म होंगी उनके पास क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा. चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो. क्या आपको इतनी बात समझ में आएगी नहीं? हेलो, पक्का? तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में बेटा ये 3 आते हैं: मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शसनेस.
ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द सिंक्रोनाइज्ड फिनोमेना। जहां पर यूनिसेलुलर की बात करें वहां पर क्या होता है कि ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन होती है और रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ होती है। दे आर यूज इंटरचेंजेबली, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक सेल से दो सेल से मल्टीप्लाई करेगा, एक से दो होंगे, दो से चार होंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे सेल्स में कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होती, तो ग्रोथ ही उनके लिए रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन उनके लिए ग्रोथ है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, और खास बात ये कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल इज एबल टू डू all the required function for their existence. Is it understandable or not? Is it understandable or not? Understood. सर आपने लास्ट में क्या बोला? मैंने कहा कि इन यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, a single cell is able to do their all required function to live or their existence. लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक सिंगल सेल सारा काम नहीं कर पाते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, मिल बांट के काम करते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस की बात में, इसमें क्या होता है, डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन्स है ना, ट्रांसमिशन के लिए इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए वी हैव न्यूरॉन्स, मूवमेंट और स्ट्रक्चर के लिए क्या है, स्केलेटन एंड मसल्स है, तो थिंकिंग के लिए क्या है, ब्रेन है, ईटिंग के लिए माउथ है, रिस्पिरेशन के लिए लंग्स है, एंड रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, सेक्सुअल ऑर्गन एज वेल एज गैमेट फॉर्मेशन और द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ, सिंस, अच्छा हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बट दे आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अगर लिविंग होगा तो उसमें सारी चीज पाई जाएगी, ठीक है ना। लेकिन कैसा कहीं ऐसा भी होता है तो रिप्रोडक्शन कहीं पे नहीं होता है, इवन के वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने आपको समवाट फर्स्ट चैप्टर 11 का डाइवर्सिटी का मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, थोड़ा बहुत मैक्सिमम यही कंसेप्ट उसमें पूरे चैप्टर में, ठीक है क्या। तो आज हम लोग आगे बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन इज डोमिनेंट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स बिकॉज ऑफ हेलो सर। देयर। हाँ बेटा। सर एक्चुअली आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एकदम मतलब शार्प नहीं आ रही, कुछ कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे फिर। हाँ सर, क्लियर नहीं। एक मिनट। हेलो हेलो। एको हो रहा। सर एको हो रहा। अब सही है? हाँ हाँ सर, आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर है सर। हाँ, आई एम सेइंग दैट कि इन द होल यूनिवर्स द ह्यूमंस हैज डोमिनेटेड ईच एंड एवरीवेयर, मतलब मींस ह्यूमंस कहाँ पर नहीं है, इसका मतलब क्या कि इनको कंटिन्यू होने के लिए, फॉर एग्जांपल यू ऑल आर 7 स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? You want that your generation will continue in future, your generation, or you are the generation of your previous generation, for your parents or grandparents. It means they leave certain kind of progeny to continue their generation. Clear है? So this phenomena is found in each and every living organism. लेकिन जिनके पास ये प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी ना, जितना ज्यादा क्वालिटेटिव होगा वो उतना ही
अपने प्रोजेनी को कंटिन्यू कर पाएगा और एग्जिस्ट कर पाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. That's why we have the first chapter, that is reproduction in organism, in which we study about the basic criteria of all the organism and what is happening in lower organism, which kind of reproduction is occurring in lower organism, and then we will study that types of reproduction and what are the process in reproduction, some involvement of organs. Is it clear? And how these, if they have gamete formation, then how these are forming. These are the basic features in which we will get some kind of introduction, and in the later chapter we will study separately for plant reproduction and animal, or basically we can say human reproduction. And then we have the fourth chapter, that is its problem related concept, disease, or what we can say human reproductive health. Since to be a person or organism to be reproductively healthy, it means they need to be in free kind of environment in which they are free from every kind of stress or any kind of problem. For example, if I say define disease का नहीं होना ये मतलब नहीं होता है कि हम मेरे पास मुझे फीवर नहीं है, मैं तबीयत खराब नहीं है। मेंटली स्ट्रेस होना ये भी अ काइंड ऑफ डिजीज है। सिमिलरली रिप्रोडक्टिव की कोई इंसान, कोई ऑर्गेनिज्म फंक्शनल नॉन फंक्शनल है, इट मींस he or she is suffering from disease. That organism is suffering from disease. Is it clear? Yes, sir. So we can say in the universe we have a lot of stories in the of life on earth. While an individual organism die without their continuing their generation, we have certain kind of organism which are dying after giving the birth of their progenies. There are certain organisms which only one on their entire life they give progeny and die, and there are certain kind of organisms in which in their whole reproductive life they give their progeny, they produce their progeny. So to get exist and establish in the incoming time or incoming generation. Is it clear? So to exist in the universe, Yes, an sir. organism need to do certain kind of function. Is it clear? Sir, can you repeat? I am saying that to establish the relation with environment or to exist in the environment, that organism need to do certain kind of process through which their generation or they can continue for longer period of time. For example, we can say humans has self consciousness. That's why they have more dominant in the entire universe. क्या एनिमल्स के लिए पॉसिबल है कि वो अदर प्लैनेट पर जा सकता है? Yes or no? With their own will? आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एनिमल किसी अदर प्लैनेट में भी जा सकता है और कुछ अपना कोई भी जाकर काम कर सकता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी, एक तो कॉन्शियसनेस एक लिविंग प्रॉपर्टी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ टॉप प्रायोरिटी ऑर्गेनिज्म दैट इज ह्यूमंस में ही पाई जाती है, लेकिन और ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती है। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ। And each and every organism live in the universe only for certain period of time. क्या बोला मैंने? हर एक ऑर्गेनिज्म कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस यूनिवर्स पर रहता है, एंड देन दे कंप्लीट देयर लाइफ, दे कंप्लीट देयर साइकिल एंड डाई। इसी पीरियड ऑफ लाइफ को, जिसमें वो अपने ग्रोथ फेज पे भी होते हैं, जुवेनाइल फेज पे होते हैं, जुवेनाइल मींस वेजिटेटिव और ग्रोथ फेज, एंड देन we have reproductive phase in which
in which the period in which they reproduces their progeny, means their progeny means offspring. जहां पर आपको किसी टर्म में दिक्कत हो आप मुझे तुरंत पूछ लेना, ठीक है ना। प्रोजेनी को बोलते हैं ऑफस्प्रिंग को, ठीक है ना। एंड देन दे हैव सम ओल्ड एज, इसको बोलते हैं सेनेसेंट स्टेज, एंड देन दे डाई। क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ, तो आप चैप्टर का नाम लिख लिया आप लोग? हाँ. हाँ, तो ये सारा पॉइंट आपको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, तो पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन होता क्या है, कौन बताएगा? टाइम के लिए The ऑर्गेनिज्म time period between birth to natural death. ठीक है, मीन्स उसके जब से वो ऑर्गेनिज्म इस यूनिवर्स पे आया तब से लेकर उसकी डेथ तक, ये जो उसका पीरियड ऑफ लाइफ है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइफ स्पैन। किसी का मिनट होता है, किसी का आवर होता है, किसी का मेनी डेज, किसी का सर्टेन वीक्स, किसी का 100 ऑफ ईयर्स होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, अगर हम लोग फ्रूट फ्लाई की बात करें, दे हैव 20 to 30 days देयर लाइफ स्पैन। यस सर। वहीं पर अच्छा, ये जो लाइफ स्पैन है इट इज नॉट रिलेटेड टू दियर साइज। ऐसा नहीं है कि अगर साइज बड़ा होगा ऑर्गेनिज्म का तो वो ज्यादा उसकी लाइफ स्पैन होगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सो वी कैन से द लाइफ स्पैन इज नॉट रिलेटेड टू दियर साइज, इट मीन्स द साइज इज बिगर, इट डज नॉट नेसेसरी दैट दे हैव लार्जर और लॉन्ग लाइफ स्पैन। समझने के लिए एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं टॉर्टाइज का। They are living approx an average of 100 to 150 years. कितना रहते हैं? 100 to 150 years उनका एवरेज लाइफ स्पेन है, इतना ही कितना रेंज में रहते हैं वो। साइज तो बहुत छोटा है, कितना होता है अप्रोक्स, वी कैन से दोनों का हाथ को मिलाने से जो स्पेस बनती है इतने ही स्पेस में उसका स्पेस होता है, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जीते हैं। बल्कि अगर एक लार्ज मैंगो ट्रीज की बात करूं, उनका लाइफ स्पेन कम होता है क्योंकि बहुत बड़ा है, फिर भी उनका लाइफ स्पेन कम है। तो वी कैन से लाइफ स्पेन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर साइज, ठीक है ना। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये आपके लिए बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी है और ये आपको नीट के लिए भी, ठीक है ना। जो पीछे किया आपने, यहां से आपको सारा कंटिन्यू लेके चलना है, ठीक है ना यार। हाँ सर। हाँ, द पीरियड ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ of an organism is called life span. Is it clear? Yes, sir. किसी ऑर्गेनिज्म के पास पहले बर्थ होगा, ठीक है, एंड देन इट विल हैव ग्रोथ फेज और वी आल्सो कॉल इट एज जुवेनाइल फेज, देन रिप्रोडक्टिव फेज, एंड देन सेनेसेंट फेज। इसी सेनेसेंट फेज को बोलते हैं ओल्ड एज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ओल्ड एज बोलते हैं। एंड देन दे डाई। इसी पूरा इंटायर स्पैन यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइफ स्पैन बोलते हैं। एक और पॉइंट है, ईच ऑर्गेनिज्म आर मॉर्टल, मीन्स
each and every organism has to die. बट इनका एक एक्सेप्शन है, क्या है, कोई बता पाएगा? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, रीजन? बस सर वो बाइनरी फ्यूजन करते हैं ना, तो मतलब वो नो उनका ऑर्गेनिज्म जो इमॉर्टल स्टार्टिंग में जो एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल, ये कोई सेल है, इससे ये 2 होंगे, 2 से 1 फिर 4 होंगे, 4 से फिर ये 8 होंगे. तो इसका अगर डेथ आने से पहले पहले ये इनके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, ये मर जाए क्या फर्क पड़ता है, आगे और सेल्स है ना, आगे ऑर्गेनिज्म उसी का पार्ट है. दे आर यूनिसेलुलर, ये अलग सेल है. तो अब बिफोर द डाई. सर हाँ बोलो. सर रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या लिखा है आपने? सेनेसेंट फेज, ओल्ड एज. सर वो दिख रहा नहीं है, मतलब स्पेलिंग का आप एक हाँ बार सर, समझ नहीं रहा वो। SENT, हाँ सर। SNSENESCENT, सेनेसेंट फेज. आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा है क्या? नहीं सर अभी तक. नहीं पढ़ा। वहां पर होगा, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा. एक होती है कुछ हार्मोन्स, दे आर रिलेटेड फॉर दियर व्हाट वी कैन से फॉलिंग ऑफ लीफ. तो सेनेसेंस को करवाता है, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, ठीक है ना, वही सेनेसेंट, मतलब ओल्ड एज. जब यहाँ पर पत्ते हुए गिरते हैं तो प्लांट के लोग, एनिमल्स की, किसी एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के लिए वो ओल्ड एज वाले फेज क्या बोलते हैं, हम सेनेसेंट फेज बोलते हैं, ठीक है ना. यस सर. हाँ, इट मींस वी कैन से these unicellular organisms are immortal because they continuously divide from one cell to two, then फिर each every cell continuously divide. That's why they actually they do not get death. clear है क्या? Each organism continue their species, continue generation from one generation to next generation. It means there is a certain kind of process which is responsible for the continuity of the species. और वो क्या प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन. हाँ, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में. And this process it becomes very vital for each and every organism, without which a organism cannot survive for long time. For example, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं अपने एग्जाम्पल पे यहाँ पे लिया, ठीक है ना. चलो मैं अपने को ऐसे बनाता हूँ, अच्छा लग रहा हूँ? हाँ जी. मैं चाहूँ कि मैं और मेरा जनरेशन लॉन्ग टाइम तक जिए, तो it should be clear that I have to leave some kind of some progeny to continue for long time. अगर ऐसा नहीं होगा तो ultimately death has to come, since all the organisms are mortal. death आनी है. clear क्या? अगर अब if I do not have any kind of progeny, no any progeny, then my generation will not continue. Yes or no? yes sir. हाँ. So this process is very important, or we can say becomes vital process, without which a species cannot survive for long time. That's why each organism leaves its progeny by different mode of process of reproduction that we call as asexual reproduction and sexual reproduction. Clear है? So this is the process. This is the process which ensures the continuity of a species. तो जिनके पास ये फिनोमेना ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा क्वालिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, they will survive more or they will dominate more. हाँ. In this reproductive phase, some are seasonal organisms, means we can say seasonal breeders, like dogs. They have only reproduction only in certain period of their what we can say season, like winter season.
and there are some organisms which can reproduce at any time. Means on the season, winter, summer, or what we can say, और क्या होता है? Spring. Winter, summer और Monsoon. मॉनसून कह सकते हैं। तो ये जो सीजन है अपने पास, वो किसी भी टाइम अपना प्रोजेनी को लीव कर सकती है। मींस दिस प्रॉपर्टी कैन दिस फीचर्स कैन occur in any time in certain organisms, but they are some are seasonal, some are non seasonal. मींस किसी कोई खास टाइम किसी खास सीजन पे ही they will reproduce and some are seasonal independent. जरूरी नहीं है कि अगर विंटर है तो विंटर में वो अपना प्रोजेनी लीव कर सकता है, चाहे वो कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे ह्यूमन हो या कोई अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग बात करते रिप्रोडक्शन के बारे में, इसको डिफाइन करते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज द ओनली प्रोसेस थ्रू व्हिच द एन ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू देयर स्पीशीज। इज इट क्लियर? Yes, sir. The biological process in which अच्छा आप लोग का टेस्ट हुआ था ना, टेस्ट में आप लोग का परफॉर्मेंस कैसा रहा? कोई बताएगा नहीं? किसी अच्छा। कौन बुलाइए? Ritika. आपका टेस्ट आपका नंबर कितने नंबर आए? सर कम है सर, जो क्वेश्चंस थे वो काफी आउट ऑफ एनसीईआरटी लगे। अच्छा, एनसीईआरटी वाले बाहर थे। हाँ चलो सर। अभी आप लोग का अभी ऐसा वो सब सर सिखाया नहीं था। आप डिस्कस करोगे वो पेपर अभी? अच्छा हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना, पहले हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा कोई नहीं, आप लोग का अभी टेस्ट पर मैं नहीं बनाया हूँ ना, इसलिए आप लोग एक्सेस कर दो, मैं भी टेस्ट पर बनाने वाला हूँ, फिर देखना है कि कौन। सर आप बनाओगे पेपर? हाँ, फिर तब फिर कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। मैं मेरा पे उसी तरह टफ रहेगा, ध्यान रखना। लेकिन मैं वो सारा पॉइंट दूंगा जो मैं पढ़ा रखा हूँ। पढ़ा रहा होगा तो चलेगा सर। हाँ बेटा, पढ़ाया हुआ होगा तो चलेगा। हाँ तो मैं वही पूछूंगा जो पढ़ाया गया है, जो मैं लिखा है वो सारा चीज। अब उससे मिलता है तो कुछ भी वो मैं उसको मॉडिफाई करके भी पूछ सकता हूँ। चलेगा सर। हाँ, so the biological process in which an organism gives rise to young ones, or we can say offspring, similar to itself, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड सो, एंड सो का मीन्स रिप्रोडक्शन। So that organism will have certain kind of growth. तो फ्रॉम बर्थ के बाद क्या होगा? उनके पास ग्रोथ होंगी, यस और नो? फिर एक मेच्योरिटी पीरियड आएगा, एंड देन प्रोड्यूस अगेन न्यू व्हाट यू कैन से न्यू ऑफस्प्रिंग। तो ग्रोथ होगा, मैच्योर, देन फिर प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, देन फिर डाई हो जाएगा। सो देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ इन द ऑर्गेनिज्म, and this process, that is reproduction, enables the organism to continue their species generation after generation. Is it clear? If I ask you a question,
that which process enables the organism to continue their species from generation to generation? कौन बताएगा? सर क्वेश्चन वापस बताइएगा। What is the process that we reproduction. call that enables an organism to continue their species from generation to generation? रिप्रोडक्शन। तो सवाल कुछ इस तरीके से भी पूछा सकता है, लेकिन ध्यान में ये मत सोचना कि सर इजी क्वेश्चन पूछेंगे। नेवर एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Should I proceed? Yes, sir. तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप्स होते हैं? 2 Sexual, कौन से? asexual. sexual asexual हाँ, बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट। सब बैक कर सकते हो 1 मिनट? एक मिनट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनके बिना पर, नहीं होगा तो उनके बिना पर। कि मीन्स एक पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या एक से ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, जो मैंने आपको लिखवाया है लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन में मैंने आपको एक आपके क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैंने आपको पेज भेजा है, हाँ सर। तो उसको आप लोग अपने एनसीईआरटी में फिलअप कर लेंगे, क्योंकि ना ये लाइफ स्पैन पूछा गया है, ध्यान रखना। लाइफ स्पैन से सवाल पूछा गया है कि नहीं कितना दे रखा है? वी हैव अप्रॉक्स 14 organism in the page, all have certain lifespan. So elephant, it can have 65 to 90 years. इंटीरियर। Is it clear? And we have also other organisms. We have like rose. Rose का लाइफ स्पैन कितना है? 5 to 7. कितना? 5 to 5 to 7 years. हाँ, 5 to 7. And then we have dog. It has 20 to 30 years. Fruit fly 1 to 2 weeks. Sorry, that is it is butterfly. तो ये आपने देखा होगा ना कि रूम वगैरह में छोटे छोटे जो कीड़े आते हैं ना, समवाट बटरफ्लाई टाइप में, वो कुछ देर बाद ना उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनमें उसकी लाइफ स्पैन उतनी ही होती है। समझ में गया? हाँ सर। सर हाँ। वो डॉग का तो 10 to 15 इयर्स होता है ना? कितना होता है? 10 to 15। 10 to 15 नहीं, ऑन एन एवरेज 20 to 30 इसको लेते हैं हम, 20 to 30। क्लियर? ओके सर। प्रो का 15 इयर्स है, बनाना ट्रीज का 20 to 25 इयर्स है, काउ का 15 to 25 है, पैरोट का 140 इयर्स है, फ्रूट फ्लाई 20 to 30 डेज, हॉर्स 62 इयर्स, क्रोकोडाइल 60 इयर्स। क्रोकोडाइल हॉर्स का अप्रोक्स ह्यूमन के आसपास ही है। ये सब कैसा क्या है? एवरेज लाइफ स्पैन का एक रेंज है। राइस प्लांट आपको पता ही है, एक सीजनल क्रॉप है, 3 to 4 months। फ्रूट राइस है 100 to 150 years, एंड वी हैव बनियान ट्री, इट इज 200 to 300 years इनका लाइफ स्पैन होता है। क्लियर है क्या? हेलो सर क्लियर। क्लियर है। ह्यूमंस का कितना है? 60 लेते हैं एवरेज में, 60 70। ये तो फेमस चीज है, और एन एवरेज 60 to 70 years जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही जिएंगे, ध्यान रखना। सम पीपल्स आर लिविंग बियॉन्ड 100 years से एक एवरेज लिया गया। फॉर एग्जांपल 100 पीपल्स का एक सर्वे किया गया और उसका एवरेज लिया गया, ठीक है ना? तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? असेक्सुअल। याद रहेगा? हाँ सर।
means if there is this kind of reproduction without or with the involvement of gametes, और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, समझ रहे क्या आप? हाँ सर। हाँ, तो इसका डेफिनेशन लिखाता हूं मैं. when offspring or is produced by a single parent with or without involvement of gametes, gamete formation. ऐसे रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. इज इट क्लियर? हाँ सर। लिख लिया क्या आप लोगों ने? एक मिनट सर. वो क्या लिखा है? विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट फॉर्मेशन. एक मिनट में, समथिंग मिसिंग. इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट होना चाहिए. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. गैमेट फॉर्मेशन मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. क्लियर है क्या? जैसे लोअर ऑर्गन जितने सारे हैं ना, वो सबके सब इसी में आते हैं. जैसे इसी बेसिकली रिप्रोडक्शन को ब्रॉडली दो क्लास में बांटा गया है. वन इज असेक्सुअल, अनदर इज सेक्सुअल. असेक्सुअल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, बर्डिंग वगैरह हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, ये सब के सब किस में आते हैं? असेक्सुअल के टाइप में आते हैं. क्लियर है क्या? हाँ सर। इनमें जो ऑफस्प्रिंग होंगे ना, दे आर आइडेंटिकल और दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. आइडेंटिकल और exact copies of their parents. एक इस तरह के पॉइंट लिखना है. आपने क्लोन का नाम सुना है क्या? हाँ सर. हाँ सर। स्पेलिंग बताना क्या क्लोन का, मैं क्या बोल रहा हूँ? CLON. CLONA. ना ये वाला COLNY. नहीं सर. कॉलोनी क्लोन. हुआ ना। A group of जेनेटिकली सिमिलर. हाँ, सिमिलर और आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग produced from single parent is called clone. बिल्कुल बिल्कुल वो एग्जैक्ट होते हैं ना.
तो ये टाइप ऑफ फीचर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिनमें से वी कैन से दे आर आइडेंटिकल और एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। मीन्स यहाँ हम लोग ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहे थे, ऑफ स्प्रिंग। आगे बढ़ो। लिख रहे सर, एक मिनट। सर ये ऑफस्प्रिंग आपने वहां पे क्यों लिखा? बेटा ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, आइडेंटिकल और एग्जैक्ट कॉपीज कौन होंगे? पेरेंट्स के तो उसके ऑफ स्प्रिंग होंगे ना, समझा नहीं हाँ क्या? सर, समझा। ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल और एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। हो गया सर। सबका हो गया? सबका हो गया क्या? यस सर। फिर हम लोग फर्दर इनके टाइप्स पढ़ते हैं ना, असेक्सुअल के टाइप्स। इसमें पहला है अपने पास बाइनरी फिजन। आपको ध्यान रखना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बाइनरी फिजन, इसका एग्जाम्पल अपने पास क्या होगा? अमीबा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। पैरामीशियम, आपने तो पढ़ा होगा डायवर्सिटी में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। इसमें क्या होता है? ये किसका डायग्राम है? अमीबा। पता है यार।
इसमें पहले क्या होगा, न्यूक्लियस आपस में डिवाइड करेगा, ठीक है। देन इट विल स्टार्टिंग के बाद क्या होगा कि इसमें न्यूक्लियस का इलोंगेशन होगा ना। फर्दर फिर न्यूक्लियस आपस में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जब इनका बॉडी इनको दो न्यूक्लियस को कंट्रोल करने से इनके लिमिट से बाहर हो जाएगा, फिर फर्दर क्या होगा, ये आपस में या बीच से टूट जाएंगे और फिर क्या क्या दो अलग अलग बॉडी बनाएगा। क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं? यस और नो? ये वाला क्या है? समझा सर? Nucleus. And these two are the outer cell. So this is the example of amoeba that showing binary fission. Clear है? तो आपने वो दो न्यूक्लियस ज्वाइन करते हुए दिखाया ना थर्ड में। नहीं, ये बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस आपस में ना इलोंगेट करते हैं। तो ये कुछ फाइबर के हेल्प से, आपने पढ़ा होगा ना न्यूक्लियस में, व्हाट यू कैन से सेंट्रोमियर जो फाइबर माइक्रोफाइबर होता है, ये आपस में इलोंगेट करते हैं। ये इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। फिर फर्दर ये न्यूक्लियस ये अलग हो जाते हैं जब ये डिवाइड करने लगते हैं। फिर ये अलग, दोनों अलग अलग बढ़ने डिवाइड होने के बाद ये अलग अलग हो गए। फिर फर्दर इनके बॉडी अलग हो गई। क्लियर? यस सर। तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है? हाँ बेटा, कुछ डेफिनेशन नहीं है क्या? अच्छा बता रहा हूँ आपको। हो गया सर। 1 मिनट। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द सेल इज डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। सब पहले बनाने दो 1 मिनट। ठीक है, फिर बना लो आप। हाँ सर हो। सबका हो गया। और ये खास तौर से बाइनरी फिजन क्या होता है, ये मोनेरेंस और प्रोटिस्ट के पास खास तौर से ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। Monera means kingdom Monera. Organism belongs to kingdom Monera, and organism belongs to Protista. They are known as Monerans and Protists. क्लियर है क्या? सर हाँ। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा कि it is a type of reproduction in which the parent body divides into two identical halves. समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। सर ये लिखना है क्या अभी? आपको समझ में आ रहा है क्या? तो हाँ लिख, समझ में आया। हाँ तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहते तो आप लिख सकते हो। कहाँ पे लिखो, मैं नीचे लिख दो ना। इसमें क्या होता है, द सेल जो इसका, क्योंकि ये यूनिसेलर है तो इनके सेल इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ। आप लोगों ने एनसीईआरटी खरीद लिया क्या? यस सर।
किसने नहीं लिया है? मैंने अभी नहीं लिया सर। सर मैंने मैंने भी भी नहीं लिया है अरे सर। आप लोग ले लो यार, मतलब क्या आप लोग सिर्फ यहाँ किताब लेके पढ़ना पढ़ोगे? ऐसे ऐसे कैसे होता है? मैंने भी ऑनलाइन भी तो मिलता है एनसीईआरटी हाँ बुक्स, बेटा, तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है ना? ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन फिजिकल बुक इज बेस्ट बुक अमंग द ऑल बुक, चाहे वो फिजिकल हो तो या डिजिटल हो। सब वो स्कूल प्रोवाइड करता है, मतलब एकेडमिक ईयर जब शुरू होगा तो हाँ बेटा, ये मिल जाएगा। सो स्कूल प्रोवाइड करता है ना एनसीईआरटी बुक्स, स्कूल प्रोवाइड करते हैं। हाँ, जिनका मतलब वो अवेलेबल हो दे जाए तो ठीक है, जिनका नहीं तो वो भाई एनसीईआरटी खेलो, क्योंकि एनसीईआरटी वैसे ही जरूरी है जैसे आपको जीने के लिए खाना जरूरी है। विदाउट फूड यू कांट लिव। Similarly, without NCERT, you can't get the concept of maximum question of NEET 22. क्लियर है क्या? यस सर। सर हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे द सेल डिवाइड टू हाफ। मैं इसका कंटिन्यूटी मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है ना, एंड के बाद आप उसमें पहले मैच कर लेना। एंड ईच सेल रैपिडली ग्रोज into 2 adults। हर एक सेल डिवाइड होने के बाद आपस में फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम। इसमें तो क्या है, दो इक्वल हाफ में होते हैं। नेक्स्ट वी हैव बाइनरी व्हाट वी कैन से बर्डिंग। बर्डिंग इज आल्सो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू नॉट आइडेंटिकल हाफ, मींस वो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। सबका हो गया? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। हाँ, सेकेंड पॉइंट लिखो इसका, सेकेंड टाइप बर्डिंग। बर्डिंग किसमें होता है? ईस्ट। ईस्ट में। ईस्ट में। हाइड्रा। हाइड्राइज्ड सर। क्लियर है क्या? तो बर्डिंग बर्डिंग में क्या होता है इसका डेफिनेशन तो बताएगा क्या? Outgrowth from the parent body which develop into a new organism. हाँ, इट इज द टाइप ऑफ डिवीजन इन विच द पेरेंट्स बॉडी, जो उन पे बर्ड्स वगैरह होते हैं, दे ग्रो एंड समवट फ्रॉम मैच्योर बॉडी, लेकिन वो इनिशियली क्या होता है, अपने बॉडी पेरेंट बॉडी पे ही अटैच होते हैं। द डिवीजन और द रिप्रोडक्शन इन विच two in which unequal small birds, बर्ड्स मतलब मीन्स जो दैट इज द, हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा थोड़ा कली जो लीफ साइड में निकलता है, उसी तरीके से हाइड्रा के बेस पे जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? बर्ड्स बोलते हैं। दैट आर प्रोड्यूस but they are remain attached to the parent body। Initially they are attached. Initially they are attached to parent body, or we can say parent cell, which finally
which finally, or we can say eventually, get separated and mature into new organism or new yeast. We can also call it as organism क्योंकि ये सिंगल सेल्ड ही होते हैं. क्लियर है क्या? यस सर। डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या? लिख लिया आप लोगों ने? ये अमीबा पे लिख हमेशा रहे। डॉटर सेल्स ही क्यों होते हैं? हाँ बेटा, अमीबा पे हमेशा डॉटर सेल्स ही क्यों होते हैं? जैसे डाउटर सेल क्यों होते हैं? हाँ, तो क्या सन सेल होना चाहिए? तो होना तो चाहिए था ना सर। होना तो चाहिए ना आप सर। बेटा नहीं, ये आप सही कह रहे हो, आप लगा सकते हो. लेकिन बेसिकली ना वी गिव मोर प्रेफरेंस टू फीमेल्स, दैट्स व्हाई वी यूज डाउटर. यहाँ डाउटर मीन्स डाउटर नहीं है, डाउटर मीन्स उनके ऑफस्प्रिंग है. डाउटर मीन्स अच्छा। देयर ऑफस्प्रिंग और तो चिल्ड्रन. हम डॉटर क्यों बोलते हैं, उसका रीजन क्या, हम सन क्यों नहीं बोलते उसे, या ऐसा स्पेसिफिकेशन क्यों देते हैं ऑफस्प्रिंग्स? नहीं, बेसिकली offsprings are the phenomena, are the organism, these are the products which are related to female. तो बोल Clear सकते है? कि मदर सेल से वो डिवाइड होके बनते हैं, तो डॉटर सेल्स। तो मदर, अच्छा, सन भी मदर से होता, फादर से नहीं होता बेटा. सर वही तो। हाँ, ये कोई कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हम प्रेफरेंस ऐसे देते हैं, इसलिए हम लोग डाउटर से बोले हैं. यहाँ पर डाउटर मीन्स डाउटर नहीं, बेटी नहीं है. डाउटर मीन्स यहाँ पर ऑफस्प्रिंग है, क्योंकि हम लोग फीमेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ना, इसलिए कहीं पर जगह क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से लेते हैं, ऐसे वर्ड यूज करते हैं टू गेट मोर प्रेफरेंस. क्योंकि ऑफस्प्रिंग्स आर द फिनोमेना व्हिच आर डन बाय, व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल्स, क्योंकि मेल प्रोड्यूस नहीं करता ना. समझ रहे क्या आप? यस सर। मेल्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, फीमेल्स आर प्रोड्यूसिंग. दैट्स व्हाई उसी से रिलेटेड बोला गया है. हाँ सर। कोई डाउट है क्या? नहीं है। सर। शुड आई प्रोसीड? यस सर। थोड़ा सा इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं. मेरा ये 1D का डायग्राम है, आप लोग 2D में 3D में बना सकते हैं. क्लियर? यस सर।
ये कोई सॉलिड सा बॉडी, ठीक है ना, मैं पेंट नहीं कर रहा हूँ। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम। एंड दीज आर नोन एज टेंटेकल्स। आपने पढ़ा होगा? दोनों पढ़ा है सर, नहीं पढ़ा है? दोनों पढ़ा है। हाँ, वेरी गुड। ये है उनके बर्ड। इसको बोलते हैं रूडिमेंटली टेंटेकल्स। ये है फुल्ली फॉर्म्ड बर्ड। लिख लिया आप लोगों ने? हेलो, हाँ सर। सर हो गया। सबका हो गया? और बीच में क्या लिखा है आपने? रूडिमेंट्री टेंटेकल्स, जो आगे चल के फुल्ली बर्ड फॉर्म होने वाला है। लिख लिया सबने? हाँ सर। एक इसमें इस तरह के पॉइंट लिखो आप लोग।
अमीबा का एक खास फिनोमेना है जो वो जब भी कभी उनके पास, जैसे ह्यूमंस है ना, तो जब भी किसी बच्चे को तबीयत खराब होती है हम उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो, ऐसा कोई मतलब ऐसा ना हो, आप हो, आपकी भी तबीयत खराब हो, पेरेंट्स आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। ठीक है, उसी तरीके से लोअर ऑर्गेनिज्म वो कहाँ जाएगा, तो उनके पास कुछ इस तरीके का मॉडिफिकेशन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। दे फॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ फिनोमिना। वो क्या करते हैं, अपने ऊपर कुछ लेयरिंग करवा लेते हैं जो भी उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, ताकि उससे वो निपट जाए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल ऑफ अमीबा। कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल टू मच हीट, टू मच टेम्परेचर, और जो भी एसिडिटी कुछ भी हो, अपने ऊपर एक लेयरिंग का कवर कर लेता है, जिनकी वजह से वो अपने अनफेवरेबल कंडीशन में बच जाते हैं। क्लियर है क्या? इसी फिनोमेना को बोलते हैं क्या? इसी फिनोमेना को बोलते हैं क्या? सिस्ट कवरिंग। क्योंकि बैक्टीरिया के पास भी होता है ना सिस्ट, आपने पढ़ा होगा डाइवर्सिटी में, होता है क्या? क्या सर? बैक्टीरिया में कवरिंग होती है ना, कैप्सूल वगैरह, सिस्ट वगैरह हाँ होती है, सर, फॉर्मेशन। पढ़ा है। तो वो उनके लिए क्या होता है, हार्श कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन को बचने के लिए होता है। तो उसी तरीके से सिस्ट भी कुछ अपना इस तरीके की लेयर कवरिंग करवाती है। इस तरीके की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्ट बोलते हैं। क्योंकि सिस्ट सर का आपका आवाज वापस वैसे हो गया पहले बेटा, जैसे, आपका आवाज वापस क्रैक होने लग गया। एक मिनट, अब ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो इस तरीके का लेयरिंग का फॉर्मेशन होने को क्या बोलते हैं? सिस्ट। और इस पूरा कंप्लीट फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इनसिस्टेशन। क्या बोलते हैं? इनसिस्टेशन। समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो, वो वर्ड क्या बोले नहीं समझ। लिख रहा हूं ना, इसमें पॉइंट लिखो, इनसिस्टेशन। ये अमीबा में होता है। सिस्ट का फॉर्मेशन होना इसलिए बोलते हैं इनसिस्टेशन। अंडर unfavorable condition, और अनफेवरेबल कंडीशन कुछ भी हो सकता है, ज्यादा एसिडिटी हो, ज्यादा टेम्परेचर हो, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाना, ये सब चीज इसके लिए क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन। क्लियर है क्या? हाँ सर। अच्छा, अमीबा का एक खास फिनोमेना होता है, उसको बोलते हैं क्या? सीडोपोडिया, मीन्स फॉल्स फीट। सीडोपोडिया, ये कंबाइंड टर्म है। एंड सेक्रेट थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। अराउंड इटसेल्फ
और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इंसिस्टेशन। बेटा यहाँ पर इंसिस्टेशन है, आपने लिखा था क्या इंसिस्टेशन? ई लिखा था। Whenever favorable condition returns, these insisted amoeba divides by multiple fission, means अपने सिंगल बॉडी से कई सारे बॉडीज बनाते हैं, कई सारे सेल्स बनाते हैं, एंड प्रोड्यूसेस मेनी माइन्यूट, छोटे छोटे से अमीबा बनाते हैं, या सीडोपोडियोस्पोर्स बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सीडोपोडियोस्पोर। जब भी फेवरेबल कंडीशन वापस आता है इसके लिए, सीडोपोडियोस्पोर्स, छोटे छोटे से माइक्रो बॉडीज होते हैं ये, और वी कैन से स्मॉल फ्रेगमेंट्स, वी कैन से माइन्यूट अमीबा। फिर वो बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं, एंड द सिस्ट वॉल बस्ट आउट and the spores are liberated in the surrounding medium and they grow into many large amoeba। और इसी फिनोमेना को, स्पोर के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? स्पोरोलेशन बोलते हैं। and this phenomena is known as sporulation। समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ सर। इस पहले क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन ने उसके ऊपर एक सिस्ट का लेयरिंग चढ़वाया, ठीक है ना। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन इट फॉर्म्स, अपने जो बेसिकली उनके पास होता है सीडोपोडिया, थ्रू विच दे कैप्चर द फूड एंड डाइजेस्ट इट बाय रिलीजिंग सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम, and after withdraws its pseudopodia, they secrete some kind of three-layered hard covering, or we can also call it as cyst around itself. This phenomenon is known as incystation. Whenever the favorable condition returns, these cysts burst out and forms many minute amoeba, or this minute amoeba is also called as pseudopodiospores, and these spores are liberated outside in the environment, in a medium where they will grow, and this phenomena is known as sporulation। means स्पोर का फॉर्मेशन होकर के आउटर एनवायरनमेंट में फैल जाना और फिर ग्रो करना, इस प्रोसेस और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पोरुलेशन बोलते हैं। क्लियर है क्या? हेलो, वापस समझाओ ना एक बार। अच्छा पहले आप लोगों ने लिख लिया क्या? हाँ सर। सबने लिख लिया? बेटा आप लोगों की आवाज नहीं आ रही? हाँ सर। हाँ सर लिख लिया। नहीं, लिखने वाला काम तो बहुत आप लोग स्मार्ट बच्चे हो ना, लिखने वाला काम तो करते हो, लेकिन समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? समझ गया। देखो, जब भी उनके पास अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, फॉर एग्जांपल बहुत एसिडिटी बढ़ गई या फिर सॉल्ट कंसंट्रेशन किसी वजह से बढ़ गया जिस इन्वायरमेंट में अमीबा रहता है, वो क्या करता है, उनके पास कुछ होती है एक्स्ट्रा आउटग्रोथ, दे आर नोन एज सीडोपोडिया, दे विथड्रॉ देयर सीडोपोडिया। फॉर एग्जांपल ये क्या है, अपने पास अमीबा है ना, इनके पास क्या होता है, कुछ आउटग्रोथ होते हैं, ये ना होगा कि कुछ इस तरीके से ग्रोथ होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, अपने फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं, इसी को ये वापस कर लेता है अंदर, दे विथड्रॉ देयर सीडोपोडिया एंड सेक्रेट अ लेयरिंग आउटसाइड देयर बॉडी। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर की हार्ड कवर। हाँ, 3 लेयर्ड हार्ड स्ट्रक्चर। Whenever the favorable condition returns, ऐसा नहीं कि हर वक्त एसिडिटी बढ़ी हुई रहेगी, या ध्यान रहे बॉडी के अंदर की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं।
Clear? Yes, sir. Whenever the favorable condition returns, these cysts burst out. पहले क्या होगा, जो उसके इंटरनल कंटेंट जो सेल का था ना, वो क्या होगा, छोटे छोटे से माइन्यूट अमीबा फॉर्म करते हैं, या फिर बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फ्यूजन. ध्यान रखना, समझ गया in general amoeba performs binary fission, but in this condition they perform multiple fission under unfavorable condition where the cyst has been occurred. जहां पर इंसिस्टेशन होगा वहां पर क्या इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा बनाते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, सीडो पोडियो बोलते हैं. स्पोर्स. एंड देन क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से स्पोर्स बन गए हैं, बेसिकली ये स्पोर्ट्स होते नहीं है इसलिए इसको बोलते हैं, लेकिन स्पोर्ट जैसा होता है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सीडो पोडियो स्पोर्ट बोलते हैं, क्योंकि वो सीडो पोडियो को अंदर लेने के बाद बात बना है. देन दिस सिस्ट बस्ट आउट, और छोटे छोटे से माइक्रोबॉडीज है ना, ये बाहर फैल जाते हैं, और बेसिकली जब लेयर रहेगा तो सारा फैल जाएगा. इन्हीं पूरा का पूरा कंप्लीट फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पोरुलेशन. कोई डाउट है क्या? नहीं सर. पक्का? हाँ सर, समझा. आगे बढ़ा जाए. हाँ, सर. हाँ सर. लेकिन व्हाट वी कैन से, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन ये कहाँ पर होता है, अमीबा में. इन जनरल नॉर्मल कंडीशन में क्या था, बाइनरी फिजन था. अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो रहा है, जब वो आफ्टर पासिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, व्हेन द फेवरेबल कंडीशन कम्स, व्हेन द फेवरेबल कंडीशन कम्स, it will form by the process of multiple fission. मीन्स मल्टीपल फिजन क्या होगा कि वो बहुत सारे फ्रेगमेंट में, बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज में वो बट जाएंगे. क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आवाज आ रही क्या? हाँ सर. आगे बढ़ो क्या? यस सर. एक स्टार्टर के एक पॉइंट और लिखना आपको. वैसे आप लोगों ने डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, जो अपने पास कितना यूनिवर्स में कितना किंगडम है अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर, 5 kingdom classification. अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड डिपो, तनुश्री, क्या था? according to Oswald Tippo, a scientist, the number of kingdom is नहीं पता. पता नहीं क्या बेटा? सर साइंटिस्ट का नाम क्या बोल रहे हो? ओसवाल्ड टिप्पो. आपने नाम नहीं सुना क्या? सुना है सर, सुना है. हाँ, ओसवाल्ड टिप्पो. बताओ इसने कितना कितना किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था? नहीं पता क्या? 2 सर. भूमिका हाँ सर. बताओ. नहीं पता. आर्यन, नहीं पता सर. फरहान, 2 किंगडम वाला दिया था. हाँ बेटा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. वेरी गुड वेरी गुड. और समार? यस सर. सवाल पूछो, जवाब दो. हाँ सर, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. वेरी गुड. सुजाल? सर. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. फाइनली वो एरिस्टोटल ने दिया था. फाइनली कम्स टू रितिका. वो एरिस्टोटल ने 2 kingdom दिया था. किसने दिया था? तो एरिस्टोटल ने 2 kingdom दिया था ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स करके. मैंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पूछ रहा हूँ. विटेकर. तो उसके बाद एक रिसेंटली हुआ था, तो 6 kingdom हुआ था, जिसमें जो मोनेरेंस में जो आर्कियोबैक्टीरिया होता है उसको अलग से रखा गया था ना.
हाँ, बेसिकली द साइंटिस्ट नेम आपको किसी को नहीं पता है. Oswald Dippo is the scientist who gave 3 domain classification in which the monadans are divided into 2 parts. That's why we have total 6 kingdom classification given by Oswald Dippo. 5 kingdom classification कब दिया गया था? 5 kingdom classification कब दिया गया था? 1992 है क्या? किसने कहा? किसने बोला? तो क्लियर नहीं मालूम मुझे. सबको ये पता है 1992? सर 69 है क्या? 16. 69 69 सर, 1969. 1969. वेरी गुड. किसी को ये नहीं पता कि 1965 पे कोई डेट है? हाँ जी. हेलो, आप लोग बोला करो ना यार. आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रहा है आवाज. आप बताओ. सर 19 बेटा 20 था ना शायद. अच्छा, एक साइंटिस्ट और है, कार्ल वूज. कार्ल वूज ने क्या किया था? 6 kingdom classification. जो ओसवाल्ड डिप्पो का था ना, उसका जो बेसिकली क्लासिफिकेशन था वो था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसने प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में किया था. वी हैव अ साइंटिस्ट, वी हैव व्हाट वी कैन से कार्ल वूज इज अ साइंटिस्ट हु गेव 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. ये सब नाम आपको पता होना चाहिए. कौन साइंटिस्ट कितने किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है? और जो कार्ल वेस ने तो 6 kingdom दिया था ना. हाँ बेटा, कार्ल वेस ने 6 दिया था. 6 का दिया था सर. 1969. वो विटेकर ने दिया था उस टाइम पे. आर एच विटेकर, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था बाय कंसीडरिंग सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. क्लियर है क्या? ये सब पुरानी बातें आप लोग याद रखो. तो किंगडम एक अपने पास फंजाई है. आपको मैं बताया था कि आपको किंगडम कैसे याद रखना है. एमपी याद रखना है, फिर फादर रखना है, फिर पीए. तो कुछ सीक्वेंस याद रखने के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है, ठीक है ना? एमपी इज द फादर ऑफ पीए. याद रखोगे, क्योंकि पीए का पोस्ट छोटा होता है और एमपी का पोस्ट बड़ा होता है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एमपी इज द फादर ऑफ पीए. एम फॉर मोनेरा, पी फॉर प्रोटिस्टा, एफ फॉर फंजाई, पी फॉर प्लेंटी, ए फॉर एनिमिलिया. याद रहेगा? हाँ सर. क्या बोला मैंने? एमपी इज द फादर ऑफ Mother पी. of PA. एम फॉर मोनेरा, Monera. कंटिन्यू करो. Protesta. प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमल. हाँ, तो जो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बेस पे बात करें इसको, तो ये क्या है? जो मोनेरेंस है, दे आर यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स. यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. यूनिसेल्युलर. बेसिकली उसमें हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते हैं. बेसिकली दे आर प्रीमिटिव, फॉल्स हैविंग फॉल्स न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई दे आर, क्या बोलते हैं, दे आर प्रोकैरियोट्स. उसके बाद यूकैरियोट्स में जो रेस्ट 4 किंगडम इज द यूकैरियोट्स इन व्हिच द प्रोटिस्ट्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. रेस्ट 3 आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स. इज इट क्लियर? यस उनमें से किंगडम में फंजाई, जो फंजाई के किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो रिप्रोडक्शन होता है कुछ सम काइंड ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एंड बाय परफॉर्मिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कैसा होता है? असेक्सुअल
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई, मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई। अगर आपको ये पॉइंट अच्छा क्या लगा, कहीं आप उसको ऊपर में पेज के टॉप में कहीं पे लिख लो, एमपी इज द फादर ऑफ पीए। एम फॉर क्या है और पी फॉर क्या, सब लिख लेना, ठीक है ना। किंगडम हैविंग स्पेशल स्ट्रक्चर, और वी कैन से स्पेशल असेक्सुअल स्ट्रक्चर। इट मीन्स यहाँ पे पेरेंट्स का, कितने पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा? वन सिंगल पेरेंट। हाँ, ओनली सिंगल पेरेंट्स, विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जू स्पोर बोलते हैं। आपने डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि हाँ नहीं सर, पढ़ा है? पढ़ा है। हाँ, जू स्पोर, एप्लेनोस्पोर, कोनिडियोस्पोर, ये सब पढ़ा होगा आपने। यस सर, पढ़ा है। हाँ सर। हाँ, ठीक है। और कुछ खास ऑर्गेनिज्म है जिनका मैं कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। जैसे कोनिडिया है ना, तो कोनिडिया किसके लिए होता है? पेनिसिलियम के लिए होता है। हाँ यस सर। कोनिडिया इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। बर्ड्स हैं किनके लिए? हाइड्रा। गैम्यूल्स किसकी बात करेंगे हम लोग? स्पॉन्ज में क्या होता है? गैम्यूल्स। These are the common reproductive structure which are used in the lower organism. आपको मैंने एक पेज सेंड किया था, जिनमें से वी हैव पोटैटो, दे हैव आईज एंड दे हैव germinating eye bud. They have also a type of asexual reproduction. Is it clear? जिंजर की बात किया जाए, दे हैव नोड्स, दे हैव बर्ड्स। तो बर्ड्स के थ्रू वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। आइकोनिया एक प्लांट है जिसके ब्यूटी के बारे में जाना जाता है कि अच्छे अच्छे से वाटर हायसेंथ। कलरफुल फ्लावर उठते हैं इसमें। दे रिप्रोड्यूस बाय स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज ऑफस्पेट। एक किंगडम है, एक फाइलम है प्लांट किंगडम में, ब्रायोफाइलम, दैट बिलोंग्स टू ब्रायोफाइटा व्हाट यू कैन से डिवीजन। नाम सुना है क्या? प्लांट किंगडम में कितने डिवीजन है? तो दो होते हैं, पांच। फेनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। उसमें अच्छा मतलब सब डिविजन्स के साथ पांच। मैंने डिवीजन की बात किया है। सब डिविजन्स 5। कितना बोला आप लोगों ने? 5। नाम बताओ क्या? हैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। हाँ, अगर याद रखना हो तो याद रखना तब PGI होता क्या है ना, कि PG पेइंग गेस्ट जो व्हाट वी कैन से स्टूडेंट्स के लिए होते हैं या फिर किसी नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं जो लोग मतलब रेंट पे रहते हैं। तो जो हिंदी में एक वर्ड तब पहले होता था क्या ना, PG अवेलेबल होता नहीं था, तो उसको मैंने याद करने के लिए ऐसा बनाया कि पहले PG था नहीं, अब PG आया, इसलिए बोलते हैं तब PGI। This is Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm, Angiosperm। अच्छा लगे तो याद कर लेना, अदरवाइज जो आपका सेट है उसका रखना, ठीक है ना। इसी ब्रायोफाइटा से वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके सब पार्ट्स में आते हैं, सब ग्रुप में आते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रायोफाइलम। ऐसे लीव्स जिनके अगर ऐसे प्लांट्स
प्लांट्स के लिए अगर फॉल हो जाने से क्या होता है कि उससे नया प्लांट्स का ग्रोथ होता है। मैंने आपको डायग्राम में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने भेजा है आपको, आप लोगों ने चेक किया गया? हाँ देखिए these are the asexual vegetative structure. Is it clear? आप लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया और लिख रहे हो? लिख रहे सर, एक मिनट। हो गया सर। सबका हो गया? हाँ जी, सबका हो गया क्या? एक पॉइंट और इसमें और ऐड करना आपको, एक इकोलॉजिकल टर्म है उसको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। जो उनमें फ्लेशी बर्ड होता है ना, फ्लेशी बर्ड, which produces new plant in hydrophytes इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूरियन बोलते हैं, ट्यूरियन, या वी कैन से टूरियन। लिखा क्या आपने? नहीं हाँ सर। एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोग जवाब दोगे? अच्छा, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको पोटैटो, जिंजर, अगेव में क्या होता है, जो मैंने आपको फोटो भेजा है वो सबके सब आपको नोट्स में होना चाहिए। डायग्राम जरूरी नहीं है, लेकिन जो नाम है और उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है क्या, जो मैंने आपको डायग्राम भेजा है वो सारे के सारे क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। किसके? एंजियोस्पर्म्स के। जैसे आइज ऑफ पोटैटो है, राइजोम ऑफ जिंजर है, बुलविल ऑफ अगेव है, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम है, ऑफसेट ऑफ वाटर हियासिन और आइकोर्निया बोलते हैं इसे। All these are the vegetative propagules in angiosperm. Is it clear? If I ask you a question, is vegetative reproduction is also a type of asexual reproduction? Yes or no? यस Yes, सर। sir. Next question, is the term applicable to the offspring formed by vegetative reproduction? बताओ। क्वेश्चन रिपीट करो। Is the term clone applicable to the offspring formed by vegetative reproduction? नो। सबका नो, Yes, sir. सबके सब गलत। क्यों बेटा? Since they are formed from same cells, that's why they are clone, identical and exact copies of their parents. So we can say consider as those offspring are clone of vegetative reproduction formed by vegetative reproduction. Is it clear? सर मैंने yes बोला था। मैंने बोला सब सबका नो, आप लोगों ने बोला यस। सर मैंने yes बोला था आंसर। वेरी गुड, अच्छी बात है। ऋतिक आपने क्या क्या कहा था? मैंने नो बोला था। तुझे बोलने क्या बात, तबीयत खराब है बेटा? हाँ सर। तबीयत खराब है क्या आपका? नहीं सर। क्लास में इन्वॉल्व होते हैं ना डिस्कशन में। सर। So while in animals and other simple organisms, the term asexual is also we can use unambiguously, means वहाँ पर भी कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है?
प्लांट्स के लिए हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। जैसे कुछ लोअर प्लांट्स है, जैसे रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ये सब के सब हमने कहाँ पढ़ा था? मॉर्फोलॉजी में। ऑफसेट है, बल्ब है, ऑल आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग बाय वेजिटेटिव, और वी कैन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्लियर क्या? Yes. Runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb, all these are the vegetative propagules. And propagules are those reproductive structure which can produce or which can form the new organism. Is it clear? वेजिटेटिव क्या? Vegetative क्या? Vegetative propagules. Vegetative propagules. अब ठीक है? यस सर। तो रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ये सब के सब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स हैं। तो आप इसका एग्जांपल भी लिख लो। जब मैं लिखा हूं टर्म, तो रनर भी लिखो, रनर है, राइजोम है, सकर है, सकर है, ऑफसेट। ऑफसेट किसका होता है? वाटर हायासिंथ, एक और Ecornia. आइकोर्निया। इकोर्निया नहीं बोलते, आइकोर्निया बोलते हैं। बल्ब। जो वाटर हियासिंथ है, इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। इनकी खूबसूरती की वजह से लाया गया था, लेकिन इसका रहना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स आप कुछ बोल रहे हो क्या? पढ़ा है। हाँ, इनको हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे, वाटर हियासिंथ के बारे में। हियासिंथ और हियासिंथ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि टेरर ऑफ बंगाल किसको कंसिडर करते हैं हम लोग? तो वाटर हियासिंथ और आइकोर्निया, इट इज द मोस्ट इन्वेसिव weeds. Invasive term is used for that kind of species which are carried from another region. मतलब कि इंडियन कंटिनेंट से नहीं, कि बाहर इसको लाया गया था, और इनके ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से। लेकिन पता नहीं था कि इतना स्पीड तरीके से ग्रो करता है, और लास्ट टाइम में पूरा का पूरा रिवर को कवर कर सकता है। और जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल। हाँ बेटा। प्रोपेग्यूल्स का डेफिनेशन क्या बताया? Propagules are the asexual reproductive structure in which those structures are responsible that are able to produce new offspring. क्लियर है क्या? सिंपली asexual reproductive structure है। हाँ सर, समझा। तो किसी स्टैंडिंग वाटर पे या स्टेगनेंट वाटर पे ये बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, और अपने ग्रोइंग फ्लावर की वजह से ये फेमस हैं। इनकी वजह से क्या होगा? जो भी ऑक्सीजन अवेलेबल होगा वाटर पे, सारे के सारे को यूज कर लेगा, जिनकी वजह से जो भी एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए दिक्कत हो जाएंगी। इट में लीड टू डेथ ऑफ मेनी फिशेज, और वहां की स्पेसीज को ये डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, तो दिक्कतें होने लगेगा। ठीक है ना? बोलो यस और नो। Yes, sir. तो वाटर हियासिंथ इज कंसीडर्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। कोई दिक्कत है आप लोगों को? बताओ। नहीं। सर टेरर ऑफ बंगाल आया था टेस्ट में। टेरर ऑफ बंगाल आया था? तो हाँ, तो पहले बार ही पढ़ा सर। था। अच्छा, तो सवाल इससे भी पूछा जाता है, जिसे मैंने आपको पहले आपको बताया कि पेनिसिलियम का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? Conidia. हाइड्रा के लिए, Birds. स्पॉन्ज के लिए Gemule. गैम्यूल। ठीक है ना? तो दीज आर द स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच दे कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। इज इट क्लियर? Yes, sir.
एनिमल्स के लिए हम लोग असेक्सुअल टर्म यूज करते हैं, वहीं पर प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव पार्ट्स और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। क्यों? कि प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसके लिए, प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी। एक होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? So the parent body divides into many fragments और हर एक fragment एक हाँ। individual organism form करता है। हाँ, इस तरह का प्रॉपर्टी हाइड्रा में पाया जाता है। एक तो हाइड्रा में बर्डिंग है ही, लेकिन उनके अगर Hyrogyra। जाने से वो जिसे एक सवाल नीट में पूछा गया है कि द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन और Planaria, फ्रेगमेंटेशन कौन होगा? एग्जांपल Planaria। प्लेनेरिया। तो ये सवाल पूछा गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। कितना इजी है और 4 मार्क्स फ्री में। चलते चलते 4 नंबर मिल गया। क्लियर है क्या? यस और नो? और पढ़ाने के यहाँ लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोगों को जिनके पास एनसीईआरटी है या नहीं है, वैसे मैंने ग्रुप में एनसीईआरटी का पहला चैप्टर को भेज दिया है। जहां तक पढ़ाया जाए पूरा का पूरा कवर अप होना चाहिए। गो थ्रू मैंने बहुत पहले कहा था कि 13 को क्लास शुरू होगी, लेकिन किसी वजह से हो नहीं पाया। गो थ्रू का मतलब है तो पूरे जो भी कंटेंट लिखा है वो उन सबसे आपको पास होना है, किसमें क्या क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है। आप लोगों ने किसी ने नहीं किया, ये पढ़ा हुआ था। तो ऐसा जिम्मेदार बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो, ठीक है ना? तो ये याद था वैसे। याद होने से क्या होता है? क्या 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 चीज याद थी आपको? तो जो चीज आपने पढ़ाया वो आता है मतलब ऑलरेडी। नहीं नहीं बेटा, आता है अलग चीज है। जो आपके कोर्स में है ना वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार आपको आता है, एक बार और पढ़ लेता है, कोई रिवाइज हो जाता। आप तो ये अपने लिए सोचा ही नहीं कि चलो इस सब बहाने पढ़ लेते हैं ताकि मेरा रिविजन भी हो जाए। सिर्फ यही तो नहीं है कि ये बेसिक चीजें जो मुझे आगे पढ़ाने के लिए सब चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो स्कोर आगे भी आएगा ना, इसलिए मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या बोला? द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पर ये है कि बेसिकली इट विल प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स। समझे? यस और नो? हाँ सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। बताओ क्या बात करने वाले हैं? बोलो यार। तुम लोग कोई बोलते नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। सेकेंड टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, वैसे हम लोग वहां पर एक पॉइंट और लिखना था ना, यहाँ पे आप लोग सर फ्रैगमेंटेशन करना था ना? हाँ बेटा, फ्रैगमेंटेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, इट इज ऑल्सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे पहला नंबर पे असेक्सुअल है, दूसरे नंबर पे लिख लेना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल हम लोग यहाँ पढ़ लिए और सेक्सुअल का भी पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज। लेकिन जो भी खास तौर से यहाँ पे एग्जाम्पल का मीन्स या फिर कोई भी नेम वगैरह है या फिर जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह से बनते ही बनते हैं, खास तौर से वहां तक जहां तक मैंने अभी आपको पढ़ाया। क्लियर है? जहां तक मैंने अभी कंप्लीट कराया आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ तक 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर इसका एप्लीकेशन तो आगे बहुत से चैप्टर्स में है। क्लियर है क्या? तो आपको सारे के सारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आपको आएगा। हो सके मैं सारे का सारा पॉइंट आपको क्वेश्चन में डाल दूं। सो गेट रेडी फॉर दैट। विल यू? हेलो? यस सर। अब मेरे एग्जाम में कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, और मैं पता है लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ। आर यू रेडी? आप आ कब रहे हो? हाँ बेटा, आप कब आ रहे हो? मेरा आना जरूरी नहीं बेटा, आपको पढ़ाना जरूरी है, समझे? तो फिजिकल में ज्यादा अच्छे से समझते हैं। अच्छा, फिजिकल में अच्छे से समझते हो। चलो कोई हो जाएगा जल्दी, बहुत जल्दी, वेरी सुन। लेकिन उससे पहले आप लोग उसको कंप्लीट तो करो। टेंटेटिव डेट्स। हाँ बेटा, टेंटेटिव डेट कब आओगे आप?
टेंटेटिव डेट मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करते बेटा. I सर live, अप्रोक्स I तो live, बताओ. I always try to live with surprise. Is it clear? हाँ जी. यस सर क्लियर है. तो बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, मेल एंड फीमेल, this kind of reproduction, and here we have different kinds of gametes are involved. One will be male, another will be female gamete. It will combine and form a process that we call as fertilization. यहाँ पर क्या होता है, हैप्लॉइड गैमेट्स मिल करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं. फिर फर्दर जाइगोट के बाद क्या होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस होता है, मींस एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है. क्लियर है क्या? So this is the type of reproduction in which two parents are involved. One is male, another is female. Is it clear? यस सर. तो हम लोग ये नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें क्या? अभी कहीं आपको टाइम हो गया क्या? सर हाँ सर, हो गया 5:15 सर. को केमिस्ट्री होगा. क्लास भी है क्या? हाँ सर. कितने बजे क्लास है? सो 5:15. Okay. You need also rest. So we will continue sexual reproduction second part. और I hope I have to complete this topic on next very class, क्योंकि फिर हमें 11 भी पढ़ना है ना. तो ये सारा जो भी मैंने पढ़ाया, go through it, please go through it. अगर आप मेरी बात नहीं मानते ना फिर अच्छा नहीं होगा. समझ रहे हो आप लोग क्या? सर जाएंगे. और 90 क्वेश्चंस आपको डेली करने हैं. नीट वाले स्टूडेंट्स, डेली क्वेश्चन 90 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स के. तो कहाँ से मिलेंगे 90 ऐसा? अच्छा, कहाँ से मिलेंगे? 90 ईयर्स की नहीं, 90 क्वेश्चन. और लास्ट 33 ईयर्स के पेपर आप लोगों को 90 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको. वैसे मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया था 33 ईयर्स के पेपर. नहीं सर, किधर है? लेकिन आप लोगों के पास लास्ट 33 ईयर्स के पेपर नहीं है क्या? बुक खरीदना है क्या? नहीं। प्रीवियस 33 इयर्स वाला. हाँ बेटा. वो 33 इयर्स वाला बुक खरीदना है. अच्छा रहेगा अगर उसको सॉल्व करोगे तो, क्योंकि उसमें लास्ट 33 से सारा क्वेश्चन दिया हुआ है. ओके सर. बायोलॉजी बट वो तो 12th का पोर्शन भी रहेगा ना, तो हाँ उसमें कंबाइंड पोर्शन बेटा, लेकिन उसमें चैप्टर वाइज अलग से दिया हुआ है. वो लिंक वापस भेज सकते हो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन वाला. लेकिन फिजिकल ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा. तो बुक कौन सा है वो सजेस्ट कीजिए ना. अच्छा मैं आपको, अच्छा ठीक है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है, बुक का. हाँ सर. और आपको एनसीईआरटी को जो भी पढ़ाई गया उसको कंप्लीट करना, ठीक है. और इसके रिगार्डिंग मैं कुछ आपको क्वेश्चन भेजने वाला हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को. यस सर. थैंक यू. थैंक यू सर. बाय. Thank you Bye, sir. sir. बाय.